So, very good afternoon, dear students. I am Dheeraj sir from Vatsala Pavanwadi School of Scholar Armory, and you are studying maths with me. Okay. So, students, first of all, I would like to wish you very happy Poda because today is the Pola festival, and you must have to enjoy, but you have to take care of your studies. So, we are posting regularly these videos. So, I hope you will enjoy Poda as well as you will watch this video and you will continue your study. Okay, so students, in maths today we are going to understand about the comparison of the numbers and ordering of the numbers. Okay, so what is meant by comparison of the number? What is meant by comparing? Comparing means that is the तुलना, comparison, यानी कि greater one, smaller one, larger one, bigger one, इस तरह से आप comparison करना होता है आपको numbers का. For example, जैसे in the class you always compare your heights with your friends, am I right? So even though you are comparing your ages also, so उसी हिसाब से आपको क्या करना होता है, you have to compare the two numbers. Okay, कौन छोटी है कौन बड़ा है बड़ी है, okay, कौन सी नंबर छोटी है कौन सी नंबर बड़ी है, that you have to compare. But while the solving the problem of comparison, you have to take 2 points in the consideration. The first point is सबसे पहले आपको while comparison of the numbers एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, and the first thing is that the number with the least digits, the number with the least digit is the smaller one, and the number with maximum of digits is the greatest one. So it is a simple statement that you have to keep in mind कि जिस नंबर में कम डिजिट्स होंगे वो छोटी नंबर होगी. द नंबर विथ लेस डिजिट्स, कम से कम डिजिट्स से जो नंबर बनती है वो स्मॉलर होंगी. ऑफ कोर्स जो जिसमें कम डिजिट्स होंगे यानी कि कम प्लेसेस होंगे, छोटा प्लेस आएगा, ओके, तो वो छोटी होंगी. एंड द नंबर विथ द मैक्सिमम डिजिट्स यानी कि ज्यादा जिसमें डिजिट्स होंगे आउट ऑफ द टू नंबर, जिसमें ज्यादा डिजिट्स होंगी जिस नंबर में, वो कहलाएंगी ग्रेटेस्ट नंबर. सो टेक एन एग्जांपल. तो सबसे पहले आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा जिससे आपको ये ज्यादा समझ में आएगा. एंड आई होप इन द लास्ट क्लासेस ऑफ 4th, 5th, 3rd, 2nd, even first class also you have already studied the comparison of the number. बट उसमें क्या था, छोटे नंबर का कंपैरिजन था. सो सिंपली सेम थिंग यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास, बट थोड़ा सा लिटिल लार्ज नंबर आपको यहाँ पे कंपेयर करने पड़ेंगे. तो नथिंग इज डिफिकल्ट, द टास्क इज वेरी इजी. दैट while comparing the numbers, you have to keep in mind that the number with the least digit is the smaller one, and the number with the maximum digits is the larger one. तो आइए कंपेयर करते हैं ये डिजिट्स को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो सबसे पहली नंबर है 1 2 3 4 5 डिजिट वाली 1 2 3 4 5, एंड दिस इज ones, tens, 100,000, 10,000, 45,967, and this is 1 2 3 4 5. Oh, एक second. So this is 1 2 3 4. This is 1 2 3 4 5 6 digit number. Okay, so look at the number. Here are total 1 2 3 4 5 6. This is 6 digits are there, and this is 1 2 3 4 5, and this number is with 5 digits. 5 digit number है, ये 6 digit number है. तो of course यहाँ पे कौन सी डिजिट बड़ी होंगी, कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा. अंडरस्टैंड, ये नंबर बड़ा होगा. सो अब आपको सिंबल रखना होता है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन. आप एवरी टाइम you cannot write with the words greater than, less than, इस तरह से आप हर बार वर्ड्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. आपको क्या करना होता है, सिंबल यूज करना होता है. तो सिंपली क्या है, जो जब आप लिखते हो और जिस साइन का मुंह आपके तरफ होता है तो उसे बोलेंगे हम ग्रेटर देन. अंडरस्टैंड. और ये साइन कब देना होता है, जब इधर ये साइड वाली नंबर बड़ी होंगी तो इधर ही देंगे. अंडरस्टैंड. अदरवाइज जिस साइड में नंबर बड़ी होंगी उस तरफ आपको वो सिंबल का मूव करना होगा. अंडरस्टैंड. बड़ी वाली नंबर इस तरफ है तो आप इसका मुंह इस तरफ रखेंगे, और बड़ी वाली नंबर इस तरफ है तो आप लेफ्ट की तरफ है तो आप इसका मुंह इस तरफ रखेंगे, फेस इस तरफ रखेंगे. अंडरस्टैंड.
सो ये जो सिंबल है जिसका मुंह आपकी तरफ होता है, आपकी तरफ होता है, दैट सिंबल इज ग्रेटर देन, दैट सिंबल इज ग्रेटर देन, यानी कि वो सिंबल है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का। और जो जिसका मुंह आपकी तरफ नहीं है, ओके, उसे बोलेंगे हम लेस देन। अंडरस्टैंड? तो ये बात समझ में आई? स्टूडेंट्स आर ऑलवेज गेटिंग कंफ्यूज इन दिस टू सिंबल्स कि वो ग्रेटर देन कहाँ पे रखे और पढ़े कैसे, और वो उनको समझ में नहीं आता है। तो आई होप जिस तरफ आपके पास बड़ी नंबर है उस तरफ उस सिंबल का मुंह होना चाहिए, लेकिन ऑलवेज जिसका मुंह आपके तरफ है उसे ग्रेटर देन बोलेंगे, और जिसका मुंह आपके तरफ नहीं है उसे लेस देन बोलेंगे। ठीक है? तो ये नंबर देखिए आप, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है। सो क्लियरली वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, एंड दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 तक है और ये लाख तक है। तो सिंपल ये है कि ज्यादा डिजिट मतलब ज्यादा प्लेसेस, यानी कि ज्यादा बड़ी नंबर। सो ऑफ कोर्स अब ये जो बड़ी नंबर है वो इस तरफ सेट की है हमने, तो सिंबल इस तरफ जाएगा, और इसे पढ़ेंगे कैसे? इस तरह से कि ये लेस देन का सिंबल है, तो ये नंबर इस नंबर से छोटी है। सो इन इंग्लिश यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट दैट कि 1 tens 100, comma, this is 45,967 is less than 4,58,670। अंडरस्टैंड? ये सिंबल कौन सा है? लेस देन का। तो आप पढ़ेंगे कैसे इस स्टेटमेंट को? पढ़ेंगे कैसे? हाउ यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट? 45,967 is less than 4,58,670, क्योंकि इससे छोटी है ना ये वाली नंबर। ओके, सो इज लेस देन। अंडरस्टैंड? अगर सेम नंबर यहाँ पे होती तो सिंबल इस तरफ होता, और ये नंबर यहाँ पे होती तो क्या होता कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ओके ना? तो इस तरह से आपको यहाँ पे वो समझना पड़ेगा और रीड भी करके दिखाना पड़ेगा। 45,967 is less than 4,58,670. So practice more. There are the examples and the exercise which I will give you as a homework. Okay, later. Now the comparison of another way, and this is note number 2. You have to keep in consideration while the comparison of the numbers with the different number of digits. Okay, number with the different number of same number of digits. सेम नंबर ऑफ डिजिट्स अगर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स वाले नंबर नहीं थे, तो जो नंबर ज्यादा डिजिट वाली है वो बड़ी होगी, और जो कम नंबर वाली होगी, कम डिजिट वाली होगी, वो छोटी होगी। तो while comparing the same number of digits, what you have to keep in consideration कि comparison of the numbers with the same number of digits starts from the left hand. This is our left hand. This is our left hand. So left hand side. And what you have to do? What you have to start from the left hand side? We have to start comparison by the first digit from the left. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन चालू करो, क्योंकि दोनों इसमें नंबर से डिजिट सेम है। तो आप क्या करेंगे? दोनों डिजिट्स में से लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट पहला वाला डिजिट, फर्स्ट डिजिट यू हैव टू कंपेयर। देयर इज 99, सो वी कैन नॉट डिसाइड कि ये नंबर छोटी है या ये नंबर बड़ी है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी फर्स्ट डिजिट 9 है, हियर आल्सो फर्स्ट डिजिट 9। Then what we have to do? We have to compare our second digit. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, so clearly 8 is greater than 2. Okay, इसका 8 is greater than इसका 2, बराबर है? So what? Then the result is this number is greater than this number. Okay, क्योंकि इसका second digit और इसका second digit हम compare कर रहे हैं, so the second digit of 8 is greater than 2, and that is why this number 8 is belongs to this number, so that is why this number is greater than this number. Okay, so therefore 9875 ये सिंबल है ग्रेटर देन का। ओके, यहाँ इस तरफ ग्रेटर नंबर है तो सिंबल भी उस तरफ ही दिया गया है। Okay, so while reading the statement, how you have to read? 9,875 is greater than 900
9287. So likewise you have to attempt the questions. आपको कुछ भी नहीं करना है, दो नंबर्स को इस तरह से कंपेयर करना है. अगर सेम डिजिट्स है तो डायरेक्ट आप आंसर लिखो. अगर सॉरी डिफरेंट डिजिट्स ऑफ नंबर है तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे. एंड सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो आपको क्या करना होगा, कंपेयर द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट डिजिट कंपेयर करो, सेम है तो फिर दूसरा डिजिट कंपेयर करो, दूसरा डिजिट भी सेम है तो तीसरा डिजिट कंपेयर करो, और फिर जो बड़ा है, जिस नंबर से वो वाला डिजिट बड़ा है वो नंबर बड़ी होंगी, फिर आप उसका स्टेटमेंट बना सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल द examples and you will attempt your exercise. I will put the question numbers and exercise number in our WhatsApp group, so you have to attempt it today. Okay, so thank you very much. Keep enjoying.